Hello everyone, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Principles of Inheritance and Variation from class 12th biology, and this chapter is very important for term 1. So without wasting any time, let's start our video. So let's start our chapter Principles of Inheritance and Variation. This chapter is included in our term 1. Term 1 में भी included है students ये chapter आपका term 1 क्लास 12 में टर्म 1 में चैप्टर इंक्लूडेड है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या है बेटा? दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring or from one generation to another, right? Transfer of characters traits from parents to offspring or from one generation to another, this is called inheritance. And what is variation? Variation is change. Variation is change, or we can say it is a raw material change in characters, you can say, or traits. It is a raw material for evolution. Evolution is a process by which it leads to formation of new species. So for that evolution, variation is very important. And sexual reproduction is mainly responsible for variation, that results in variation and new recombination. So in this chapter we are going to study Mendel laws of inheritance. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडल लॉस. मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल, who was father of genetics. Then we will come to inheritance of one gene, inheritance of two genes. ठीक है, कैसे जीन इनहेरिट होते हैं, और वन जीन, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, या टू जीन्स कैसे एक साथ इनहेरिट होते हैं. देन सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर. So humans knew from early around 8000 to 1000 BC that one of the main causes of variation was hidden in sexual reproduction. तो ह्यूमन बींग्स को बहुत पहले ये पता लग चुका था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए. That's why they select breeds, different breeds or superior breeds of animals, and they select them for desirable character. ठीक है. And similarly artificial selection and domestication of wild cows. ठीक है, like Indian breed साहिवाल काउ इन पंजाब. और तो इस तरह के बेटा उनमें जो भी चेंजेस ये लाते थे, तो अच्छी ब्रीड्स को इंटरब्रीड करा करके, तो नए तरह की F1 जनरेशन में, नए जनरेशन में जैसे ही करेक्टर चाहते थे वैसे हमारे ब्रीडर्स को मिल भी जाते थे. चलिए अब थोड़ा सा साइंटिफिकली क्या ये इनहेरिटेंस है और किन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया. लेट study that. Mendel's law of inheritance. So it was around in the middle of 19th century. There was a scientist George John Mendel who conducted hybridization experiment on garden peas. Garden peas is scientifically, or biological name is Pisum sativum. Genus and species name is underlined differently. So he worked for 7 years. ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है कि कितने ईयर्स तक इन्होंने काम किया था. So he worked for 7 years, that is from 1856 to 1863, and he gave laws of inheritance कि किस तरीके से organisms के जो characters हैं, जो traits हैं, वो next generation में आते हैं. So he used the concepts of maths and logics in biology as well. So इन्होंने बेटा मेनली 7 करेक्टर्स इन्होंने जो है पी प्लांट के स्टडी किए थे. यू कैन सी हियर वो 7 करेक्टर क्या थे. सीड शेप, पी प्लांट में पाइजम सेटिवम में सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप,
then pod color, flower position. These are the 7 characters that was studied by Mendel. तो बेटा अब हर करेक्टर की दो फॉर्म्स प्रेजेंट थी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट थी। लाइक अगर शेप की बात करें तो 2 टाइप्स की शेप वाले सीड्स इस प्लांट में प्रेजेंट थे, लाइक राउंड एंड रिंकल्ड। अब इन ट्रेड्स को 2 फॉर्म्स में इन्होंने डिफाइन किया, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेड इज अ ट्रेड दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसको डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं। रिसेसिव ट्रेड क्या है? द ट्रेड दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, लाइक हमारे अंदर जो करेक्टर्स हैं वो हमारे मदर एंड फादर दोनों से हैं, लेकिन सपोज आई कलर मदर जैसा है या हमारा हाइट फादर जैसी है, तो कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो मदर के डोमिनेंट है, तो मदर के रीअपियर होंगे हमारे अंदर, या वी कैन सी द करेक्टर एज मदर। और जो करेक्टर फादर के डोमिनेंट है तो वो वैसे हमें नजर आएंगे। सीड कलर की बात करें, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन इज रिसेसिव अगेन। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या था? कलर्स में वॉयलेट डोमिनेंट था, व्हाइट रिसेसिव था। पोर्ट शेप में फुल इन्फ्लेटेड जो पोर्ड कवर था वो डोमिनेंट करेक्टर था, कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप रिसेसिव थी। पोर्ड कलर की अगर हम बात करें, जो कवर होता है मटर का, that was green, it was dominant, and yellow was recessive. Then if we talk about position, तो axial मतलब साइड में जब फ्लावर्स थे, so it was dominant, and टर्मिनल जो फ्लावर थे ये कैसे थे? रिसेसिव। स्टेम हाइट की बात करें बेटा, स्टेम हाइट 2 तरह की थी, टॉल पौधे लंबे थे, और ड्वार्फ यानी कि छोटे थे, स्मॉल। तो टोटल 7 करेक्टर्स इन्होंने स्टडी किए, और इन्होंने देखा कि नेक्स्ट जो सक्सेसिव जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उनमें कौन से करेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं और कौन से करेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहे हैं। सो दिस कैन इजिली बी इन्वेस्टिगेटेड बाय मेंडल एज टू अपोजिंग ट्रेट्स। हर करेक्टर 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट था। लाइक हाइट की बात करें तो टॉल और ड्वार्फ था, सीड्स की बात करें कलर की तो येलो और ग्रीन सीड थे। तो ये सभी चीज़ें थी जिसकी वजह से अल्टरनेटिव ट्रेड्स अवेलेबल थे, तो मेंडल ने इस प्लांट को जो है सेलेक्ट किया। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी किया, ताकि वो अलग अलग प्लांट स्पीशीज को ब्रीड करा करके देख सके। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी वो करवा सकते थे। तो इन्होंने मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए, जिसमें से हर करेक्टर 2 फॉर्म्स में अवेलेबल था। तो 14 प्लांट ब्रीडिंग वैरायटीज पे इन्होंने जो है काम किया, और पेयर्स वर एग्जैक्टली सिमिलर एक्सेप्ट विद वन ऑफ द करेक्टर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट। कुछ एक अदर डिफरेंट था, बाकी सब जो है करेक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्या अल्टरनेटिव करेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। दिस इज सेम जो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है अवेलेबल थे। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ जीन। जीन की इनहेरिटेंस की बात करते हैं, inheritance of gene. So let us take an example of such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf tree. तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, और उनकी उन्होंने क्या कराई? क्रॉसिंग करवाई, और F1 जनरेशन में उन्होंने F1 प्रोजेनी जो थी, फर्स्ट फीमेल जनरेशन थी, उसमें उन्होंने रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए। सो लेट्स डिस्कस दिस क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा, क्रॉस की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। तो मेंडल टेक one tall plant, that is capital T and one small plant small t, right? तो F1 जनरेशन में जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाई, यू कैन सी हियर बेटा, इस तरह का ये स्क्वायर जो हम बनाते हैं, दिस इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, दोनों डोमिनेंट कैपिटल टी आपने यहाँ ले लिया, रिसेसिव स्मॉल टी यहाँ ले लिया। तो यू कैन टेक इट एज, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू कैन हैव अ रिजल्ट जो हमारे पास F1 जनरेशन में आएगा। तो F1 जनरेशन में क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास? कैपिटल स्मॉल यानी कि सभी हाइब्रिड। तो बेटा विच करेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ? दिस इज फॉर टॉल प्लांट, दिस इज फॉर ड्वार्फ। तो कैसा हमारे पास सारे प्लांट आए? तो हमारे पास सारे हाइब्रिड टॉल,
hybrid tall. Just wait for a second. यस, तो हमारे पास सारे प्लांट्स कैसे आए? हमारे पास सारे प्लांट्स हाइब्रिड टॉल आए यहाँ पे। हाइब्रिड टॉल हमारे पास सारे थे। देन F2 जनरेशन की बात करें कि जब हमने इनकी F1 की क्रॉसिंग करवाई, लेट चेक हियर, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, F1 जनरेशन की जब हमने क्रॉसिंग करवाई, सो वी हैव द रिजल्ट। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट F2 जनरेशन में है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। सो दिस इज, अगर हम इसको बात करें बेटा, ये तीनों दिखने में कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली ये कैसे होंगे? टॉल प्लांट। 3 कैसे होंगे? टॉल प्लांट। और ये 1 कैसा होगा? ड्वार्फ। ये कैसा होगा? ड्वार्फ प्लांट। तो अगर हम रेशियो की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए 2 टाइप्स की रेशियो हम यहाँ बात करेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज 3:1, 3 टॉल है एंड 1 इज ड्वार्फ, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या रहेगी? 1:2:1, ठीक है। तो दिस विल बी अवर रेशियो। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही करेक्टर स्टडी किया स्टूडेंट्स, मेंडल ने इस यहाँ पर एक ही करेक्टर स्टडी किया, सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस, ये जो क्रॉस है बेटा, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, monohybrid cross. And one more thing you can note here कि मेंडल ने जो भी डिफरेंट करेक्टर्स थे उनके लिए क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? फैक्टर। कि एवरी देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डिफरेंट करेक्टर। उनको जीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। द टर्म जीन वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जॉनसन, टर्म जॉनसन, टर्म जीन वाज गिवन बाय जॉनसन एंड Mendel generally uses term factor for the genes. Then again, one scientist came, that is Batson, I think, he gave the terms alleles. Ki every gene, these are the, you can say, alternative, alternative forms of gene. Alternative form of genes is called alleles. जैसे मैंने आपको बताया प्लांट हाइट के बारे में, प्लांट हाइट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो प्लांट हाइट हमारे पास 2 टाइप की थी, 1 इज टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। 2 टाइप की हाइट थी, तो ये दोनों क्या है? एलील्स। और प्लांट जीन कौन सा है? प्लांट हाइट के लिए जीन है, राइट। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने प्लांट हाइट के लिए किया एंड दे गॉट phenotypic and genotypic ratio. You can see here same cross, tall plant, that is capital T capital T, small. This is homozygous condition, homozygous, right? जब हम यहाँ पर दोनों सेम फॉर्म्स ले रहे हैं, कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल, दिस इज homozygous condition and this is heterozygous condition, all right. So मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन में हमारे पास all plants were hybrid tall, हाइब्रिड टॉल, कोई भी प्योर टॉल नहीं था। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर जब हमने F1 की क्रॉसिंग करवाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए बेटा, तो वी गॉट 1 प्योर टॉल, हमारे पास एक प्लांट आ गया प्योर टॉल, और 2 कैसे आ गए? दीज 2 आर हाइब्रिड टॉल, एंड दिस इज ड्वार्फ, दिस इज ड्वार्फ, ठीक है। तो एंड ये जो स्क्वायर मेथड हमने यूज किया अभी, ये स्क्वायर मेथड मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया था
for crossing. This is called Punnett square. Okay, Punnett square. The scientist Punnett gave this method. It's easy to. So phenotypic ratio जैसे हमें प्लांट मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहे 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, लेकिन जीनोटिपिकली जो जीन्स के अकॉर्डिंग वन इज प्योर टॉल, 2 आर hybrid tall, and one is dwarf. Okay, so this is all about monohybrid cross. Then one important term here is test cross. So we are going to discuss test cross and back cross. Back cross. So students, what is test cross? Very important. Test cross. It is a cross between. It is a cross between F1 generation, F1 generation and recessive, F1 generation and recessive parent, right? F1 generation में we have capital T small t and recessive parent is small t small t. तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा, you can do it with the help of Punnett square. देखिए capital small यहाँ पे रहेगा small and small, so we'll get result capital small, small small, and then small small. This type of cross is between F1 generation and first filial generation and recessive parent. This is called test cross. All right. Now coming to back cross. Back cross की बात करते हैं students. Very interesting. Now back cross देखिए. Back cross when F1 generation crosses with any of the two parent. When F1 crosses with any of the two parent, it may be dominant और रिसेसिव. चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, अगर F1 का क्रॉस हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस. सो वी कैन से every test cross is regarded as back cross, but vice versa, यानी कि every back cross is not test cross, but vice versa is not true. Got it? चलिए, so this is all about back cross and test cross. So you can see here with another example of test cross. See here, they have taken homozygous recessive parent, okay, recessive parent, and in second they have taken homozygous recessive parent here as well. So one is dominant phenotype and one is F1 generation. In F1 we got hybrid, right? So F1 parent की जब हम recessive parent के साथ, this is recessive parent. When we cross F1 with recessive parent, this type of cross is called test cross. So monohybrid cross से हमारे पास कौन से लॉज आए? प्रिंसिपल या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. दैट वाज फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस द डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फॉर्म. यानी कि जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वेदर इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइग, चाहे वहाँ कैपिटल टी दोनों है या कैपिटल स्मॉल है, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल, क्योंकि टॉल एक डोमिनेंट करेक्टर है, टॉलनेस. तो हाँ, फर्क इतना है कि दिस इज प्योर टॉल एंड दिस इज हाइब्रिड टॉल. ठीक है, लेकिन वो तो हमें जीनोटाइपिक रेशियो से पता लगेगा, फिनोटाइपिक रेशियो से तो दिस बोथ प्लांट विल अपीयर टॉल. तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नो टू alleles of a gene can intermix or blend. It will segregate itself. May not be in F1 generation but surely in F2 generation. जैसे आपको कोई भी dwarf plant F1 generation में नजर नहीं आया but F2 में उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, राइट?
F2 जनरेशन के अंदर उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है, जैसे कि रिसेसिव करेक्टर, जो रिसेसिव करेक्टर था हाइट का, जिसको हमने ड्वार्फ हाइट बोला, was not expressed in F1 generation, but it was expressed in F2 generation. So this is law of segregation. Segregation का मतलब सेपरेशन, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीन मिक्स हो गया या ब्लेंड हो गया. It will surely appear in F2 generation, right? So this is law of dominance, in which Mendel concluded that the characters are controlled by some factors. उस समय उनको जीन्स वो नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, फैक्टर. और फैक्टर हमेशा किसमें होते हैं, पेयर्स में. देखिए अगर हम हाइट के लिए बात करें तो दीज आर इन पेयर, and one is dominant, other is recessive. This is dominant, this is recessive. This is just an example. फिर log segregation मैंने आपको बताया. According to this law, the alleles do not show any blending, कहीं भी छुपते नहीं है. They will recover in F2 generation, like dwarf plant. Dwarf plant F1 में नहीं थे, F1 में नहीं थे, but F2 में they will reappear. So they are not seen in F1 stage, but they are reappear in F2 generation. So this is law of segregation. मतलब alleles कभी भी mix नहीं होते, कभी भी blend नहीं होते. And of course, we can say a homozygous parent produce all gametes that are similar, but heterozygous produce two type of gamete, one allele with equal proportion. So this is all about today's class. In our next class, we are going to discuss next topic of this chapter. So till then, stay tuned. Goodbye. And I hope this video will be helpful for you all. So do like, share and subscribe. Goodbye.